Hello student, today we will discuss about operating system. But before discussing it, we'll have to know few more terms related to software. So a set of instruction is known as program. A set of interrelated program is known as software. The software can be classified as system software and application software. System software are made up of operating system and utility software. तो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उस सेट को हम बोलते हैं प्रोग्राम। इसी तरह से आपस में जुड़े हुए कई सारे इंस्ट्रक्शंस से मिलकर बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Operating system and utility software manage and maintain computer hardware and provide sources for application program. Example of operating system are Windows, Linux, and backup utility. On the other hand, application software solve real-life problem for user. Example of application software are MS Word, MS PowerPoint, Adobe Photoshop. तो जैसा कि आपने अभी अभी पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिवाइड किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे आपका कंप्यूटर ऑपरेट होता है, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, जिसके बिना आपका कंप्यूटर रन नहीं कर पाता है। साथ ही साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे बैकअप यूटिलिटी, जिसकी हेल्प से आप अपने सॉफ्टवेयर का, अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं। सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये हमें अपने कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे MS वर्ड, MS पावरपॉइंट या एडोब फोटोशॉप। So let's talk about operating system. The operating system is the most important program that runs on a computer because it manages all the other program system resources. It coordinates the activity of a computer system. It also facilitates the sharing of the system resources among different applications. The operating system provides a platform for application software to run. The operating system acts as an interface between computer and user as well. You can better understand this by seeing this block diagram. तो जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है। ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस की तरह काम से करता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तक पहुंचाता है। Let's check the history of operating system. The earliest computer had no operating system. Computers of that time were very primitive. Only one person could use a computer at a time. All the resources of the computer were at a disposal. To get over this problem, an input-output control system known as IOCS was developed. No longer had to code input-output instruction. Instead, they used IOCS. They simplified and speeded up the coding process. The use of IOCS marked the beginning of the use of operating system in computer. The first major IOCS was designed by the General Motor Research Laboratory in 1956 for their IBM 701 mainframe computer. This was considered to be the first ever operating system. In 1974, Dr. Gray Cadell created CP/M as the first operating system for Intel Corporation new microprocessor. By 1977, it had become the most powerful operating system for microcomputer. तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो अर्लीस्ट कंप्यूटर थे उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। हर कंप्यूटर के लिए
पर्सन टू पर्सन अलग अलग कोडिंग हुआ करती थी, इसीलिए हर यूज़र को अपने कोड अलग से लिखने पड़ते थे, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन लेवल लैंग्वेज पे लिखने पड़ते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया। इस तरह से IOCS का इस्तेमाल जब से होने लगा, तभी से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को मानते हैं। और पहला IOCS प्रोग्राम जनरल मोटर रिसर्च लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था। इसके बाद 1974 में डॉक्टर ग्रे ए कैडल ने इंटेल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। A user interact with the operating system through a set of commands. These commands may be provided to it through the mouse or a keyboard. An operating system with graphical user interface is known as GUI operating system. It allows a user to give command to it by clicking the mouse on a specific object or words on the screen. An example of GUI operating system is Microsoft Windows. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम कंप्यूटर को माउस क्लिक से कमांड दे सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कंप्यूटर को माउस के थ्रू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर कर कमांड दी जाती है। An operating system with character user interface is known as CUI operating system. In order to give the command to such an operating system, keyword associated with a specific task must be typed using the keyboard. An example of CUI operating system is MS-DOS. तो character user interface operating system को हम क्या बोलते हैं? CUI. ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए उससे रिलेटेड वर्ड्स को हमें कीबोर्ड के थ्रू कमांड की फॉर्म में टाइप करना होता है और उस कमांड को हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और इसका एग्जाम्पल है MS-DOS. Operating system may also be classified as multi-user operating system that allow two or more users to run a program at the same time. Some operating systems permit 100 or even 1,000 of parallel user. Example of multi-user operating systems are Linux, Unix, Windows, etc. मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा यूज़र एक समय पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लिनक्स, यूनिक्स, विंडो। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू बी रन ऑन मोर देन वन CPU. एग्जाम्पल ऑफ लिनक्स, यूनिक्स, विंडो एक्सेट्रा। और इसी तरह से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? ये एक प्रोग्राम को एक समय पर एक से ज़्यादा CPU पे चलाने में मदद करते हैं, और इसके भी एग्जाम्पल हैं लिनक्स, यूनिक्स, विंडो। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम that allow more than one program to run in a parallel. Example Linux, Windows, Unix, etc. उसी तरह से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? एक समय पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम उनमें आप पैरेलली चला सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है लिनक्स, यूनिक्स, विंडो। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल है लिनक्स, यूनिक्स, विंडो एक्सेट्रा। और मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिसमें सिंगल प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट को आप एक साथ चला सकते हैं।